Hi everyone. So welcome to the class. So welcome to this new crash course that we have launched for all of you, that is complete coverage of environment and ecology. Purna coverage, completely it will be covered, a crash course on environment and ecology from the perspective of prelims. So we're going to cover the important aspects, the most important topics of environment and ecology in this crash course for all of you for your upcoming preliminary examination. So I hope that now we are going to start the environment and ecology with complete faith. हम इसको crash course के माध्यम से cover करेंगे. So we are going to complete the major topics of environment and ecology. हम क्या करने वाले हैं, environment ecology के जो बहुत important major topics है ना, उनको cover करने वाले हैं. ठीक है, ताकि आपके environment और ecology prelims के लिए strong हो जाए. If we talk about environment and ecology, it's a important topic for your preliminary examination. It's a very important subject for prelims because environment and ecology से कम 31, 21, sometimes 11, these are the range of questions that they are asking, right? So we have to prepare accordingly. उसी के हिसाब से हमको prepare करना है. 11, 21, 31 इस range के questions पूछे जाते हैं. ठीक है, तो we are going to focus on environment and ecology very importantly. So before we start the class, we'll discuss the sources that we are going to use in this class. मैं आपको sources भी बताने वाली हूँ जो हम use करने वाले हैं. And we are going to discuss today the most important topics about food chain, food web, ecotone, etc. Okay. So before we start the class, here's a small announcement for all of you. आप लोगों के लिए एक छोटी सी announcement है क्लास शुरू करने से पहले, that Unacademy has launched its iconic subscription. Okay, now what is the iconic subscription? Here you will be getting your personal coach. इस subscription में आपको एक personal coach मिलेगा who will be guiding you towards your goal, prelims, mains, interview in all the 3 steps. That personal coach will be your guide throughout. Okay, and that personal coach will also be preparing your study planner. So you will be getting a study planner as well. Okay, आपको एक study planner भी दिया जाएगा according to which you can complete your syllabus as well as your revisionary rounds. You will be getting experts guidelines also. मेंस Q&A प्रैक्टिस आपको मिलने वाला है, यानी कि आपके आंसर्स को भी इवेल्युएट किया जाएगा. योर आंसर्स विल बी इवेल्युएटेड थरोली बाय योर पर्सनल कोच, बाय एन एक्सपर्ट. Okay, and also there will be daily live classes. You can watch the recorded classes also if you have missed them. And then there will be structured courses which will help you to complete your syllabus even before prelims so that you can revise them on time. ओके, एंड अनलिमिटेड एक्सेस. जितने टाइम के लिए आपने सब्सक्राइब किया है उस टाइम के लिए आप कितनी भी बार किसी भी एजुकेटर की क्लासेस या कोर्सेज देख सकते हो. ठीक है, सो यू कैन यूज़ कोड शर्मा20. ये कोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. यूजिंग दिस कोड यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन. इस कोड को यूज़ करके आपको ईजिली 10% ऑफ या 10% डिस्काउंट मिल सकता है आपके सब्सक्रिप्शन पर. ठीक है, आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन. यू कैन सब्सक्राइब नाउ. एंड फ्रॉम 25th of Jan द प्राइस इज इंक्रीजिंग ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो. 2 दिन बाद इसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, चलो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, UPSC हैज चेंज द फॉर्मेट कंप्लीटली फ्रॉम 2011. 2011 से पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया बिकॉज यू नो दैट नाउ द फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आप सभी को पता है. दैट इज वाई इन 2020 इन प्रीलिम्स देयर वर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. ठीक है, वाई इट हैपन्स बिकॉज नाउ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टूडेंट्स ऑल्सो गिव द सेम प्रीलिम्स दैट यू आर गिविंग. जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के स्टूडेंट्स हैं वो भी वही प्रीलिम्स देते हैं जो आप देते हो. तो इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो रोल है वो इंक्रीज कर दिया गया है. इट हैज़ बीन इंक्रीज. दैट इज बाय समटाइम्स देयर आर 31 क्वेश्चंस डायरेक्टली टेकन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, 22 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन. सो यू कैन सी दैट अप्रॉक्सीमेटली एट लीस्ट दे विल बी आस्किंग 42 मार्क्स फ्रॉम योर एवरेज. आप देख लो, आप अप्रॉक्सीमेटली देखो 42 मार्क्स तक आपके पूछे जा सकते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के. यानी कि इंटायर पेपर, आउट ऑफ द इंटायर पेपर अप्रॉक्सीमेटली 42 मार्क्स कैन कम फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. दैट इज द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस. ये लेवल है इसका.
ठीक है. So that is why we have to focus on it. Students, they try to reject, or they try to ignore environment and ecology portion. They think that it's easy, we can do it. No, it's not very easy. But yes, if you prepare the current affairs diligently, and if you prepare your NCERTs diligently, then nobody can stop you from cracking environment and ecology. Now, what are the sources that we are going to use, and what you should also use in this environment and ecology? We have to use NCERTs. Geography NCERT 6 to 12th, because from class 6 to class 10th it is all about environment and ecology. Geography की जो NCERTs है, न्यू NCERTs 6 से 10 तक की NCERTs में मेजर टॉपिक्स आर टेकन फ्रॉम environment and ecology. ठीक है. Then you have to cover class 12th biology NCERT, old or new, whatever आपके पास old है that's good, new very good, ठीक है, old new both will do. So biology NCERT class 12th last 4 chapters, जो last के 4 chapters है ना, वो आपको cover करने हैं in biology NCERT. If you have ICSE book, that also you can refer class 10th and class 11th. Okay, now for current affairs, what you have to refer? For current affairs we have to refer the newspaper, एंड यू कैन रेफर डाउन टू अर्थ मैगजीन. ये जो डाउन टू अर्थ है ना, ये मैगजीन है. अगर आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, इफ़ यू हैव योर ऑप्शनल एज ज्योग्राफी, देन दिस मैगजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैगजीन आपको रेफर करनी ही करनी है. ठीक है. साइंस रिपोर्टर मैगजीन यू कैन रेफर फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. फ्रॉम माई रिकमेंडेशन यू कैन रेफर वन न्यूज़पेपर, दैट इज हिंदू न्यूज़पेपर, एंड द साइंस रिपोर्टर मैगजीन, दैट टू द ऑनलाइन वर्जन. इसका ना ऑनलाइन वर्जन आता है, वो आपका यूपीएससी के लिए सेग्रीगेटेड होता है. ठीक है. तो आप इसको अलग से ऑफलाइन नहीं खरीदो, तो ऑनलाइन वर्जन इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन रेफर टू इट. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ऑल्सो. सो द साइंस रिपोर्टर मैगजीन्स वेबसाइट यू कैन रेफर, एंड द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर योर एनवायरमेंट इकोलॉजी प्रिपरेशन. तो यहाँ से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे. दे विल हेल्प यू टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, एंड द स्टैटिक पोर्शन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनसीईआरटीज. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ सम स्टूडेंट्स दे परचेज शंकर IAS बुक ऑल्सो. कुछ बच्चे शंकर IAS की किताब भी परचेज करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड. ठीक है. दिस शंकर IAS बुक विल ऑल्सो कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ये किताब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो टॉपिक आए ना, उसको प्रिपेयर करवाएगी. ठीक है. सो यू कैन रेफर टू शंकर IAS बुक एज वेल. ये किताब भी आप रेफर कर सकते हो. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. दिस इज द बुक, आई विल शो यू. ये जो किताब है, दिस रेड बुक, दिस इज द शंकर IAS बुक, द लेटेस्ट एडिशन. सो नाउ इफ यू हैव शंकर IAS बुक ना, देन देयर इज नो नीड टू स्टडी द NCERTs. अगर आपके पास शंकर IAS है तो NCERTs पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इवन द NCERTs आर कवर्ड इन शंकर IAS. सो यू कैन कीप वन बुक, दैट इज शंकर IAS, एंड द करंट अफेयर सोर्स, दैट इज ऑल्सो गुड. ये कॉम्बिनेशन भी आपका बढ़िया है. ठीक है. एंड येस, शंकर IAS विल हेल्प यू इन मेंस ऑल्सो. बट देखो, मेंस में ना शंकर IAS का इतना हेल्प नहीं होगा. वाई? बिकॉज इन मेंस इफ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यू मस्ट बी नोइंग इट इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. मेंस में आपका पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो शंकर IAS स्टैटिक किताब है. तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स. ठीक है. शंकर IAS इज वेरी गुड फॉर प्रिलिम्स, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस ना, देन मेक श्योर दैट योर करंट अफेयर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, because 4 to 5 questions are coming, and that too solely from current affairs. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स? हम इस कोर्स में क्या कवर करने वाले हैं? दीज आर द टॉपिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 1, जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी. ओके. देन कल से पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, एंड वी आर गोइंग टू टेक ऑन द करंट अफेयर्स ऑल्सो फ्रॉम टुमारो. कल से जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है. फ्रॉम टुमारो द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर ना, दोज आर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू कवर देम. ओके, ऑल राइट. यहाँ तक सभी को समझ आ गया तो जल्दी से बताएं. If the points are clear, let me know so that we can move forward. When we talk about the definition of ecosystem, we should know what is a system first. ठीक है. इकोसिस्टम की डेफिनेशन से पहले सिस्टम समझ लेते हैं कि भाई सिस्टम क्या है. सो व्हाट डू यू थिंक इज अ सिस्टम? आपको क्या लगता है सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक अ सिस्टम इज? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फटाफट से बताएं. व्हाट इज अ सिस्टम? व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम यू कैन से इज अ ग्रुप. सिस्टम एक ग्रुप हो सकता है. सिस्टम कैन बी अ ग्रुप ऑल्सो, और इट कैन बी अ सम असेंबलेज ऑल्सो. इट कैन बी अ some assemblage also, right? System can be a group or a some assemblage. ठीक है. and some assemblage of what? यानी कि assembly of what? Assembly of elements.
it can be an assembly of elements. It now देखो we are studying environment, so we are taking elements, ठीक है. अगर हम society पढ़ते तो हम क्या बोलते हैं, assembly of people. If we have been studying society, we'll say that it's an assembly of people, ठीक है. But in environment it is their assembly of elements, ठीक है. एंड व्हाट आर दे डूइंग इन दिस असेंबली, ये एलिमेंट्स इस असेंबली में क्या करेंगे, दीज एलिमेंट्स विल बी इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. ये एलिमेंट्स अपने आप से एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, दे विल बी इंटरैक्टिंग और दे विल बी इंटरडिपेंडेंट, या फिर ये इंटरडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे, ऑन ईच अदर, और यू कैन से विद ईच अदर, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को. सो दिस इज द सिस्टम. सिस्टम इज अ ग्रुप और अ सम असेंबलेज ऑफ एलिमेंट्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर और इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है. और दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड सिस्टम. इसको हम सिस्टम बोलते हैं. पर अगर हम बात करें इन्वायरमेंट सिस्टम की, if we talk about the environmental system, what can be the definition of that? Environmental system can be the assembly or the group of elements which are present in the nature interacting with each other or interdependent on each other, ठीक है. environmental system क्या हो जाएगा, it can be a group of natural element, ये natural element का group हो जाएगा, ठीक है, विच आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर और इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. सो इन सिंपल लैंग्वेज, राइट इट डाउन, इन सिंपल टर्म्स और सिंपल लैंग्वेज, सिस्टम क्या होगा, व्हाट कैन बी अ सिस्टम, इट विल बी अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ द इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, विच आर कमिंग टुगेदर, ठीक है, विच आर कमिंग टुगेदर टू ऑपरेट. एंड हाउ इट विल ऑपरेट, इट विल ऑपरेट कलेक्टिवली, बिकॉज ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, सो दे आर ऑपरेटिंग कलेक्टिवली. वाई, टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स, रिप्रोड्यूस, आगे एक्सपैंड करना, फूड आइडेंटिफाई करना, टू फाइंड देयर फूड. दीज आर द डिफरेंट पर्पजेस वाई द एलिमेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है. तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बना सकते हो, यू कैन क्रिएट अ बॉक्स ओवर हियर, ठीक है. यू विल राइट देयरफॉर, बॉक्स के ऊपर लिखेंगे देयरफॉर, इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल शब्दों में, अ सिस्टम कुड बी, it could be defined as a set of interrelated components. okay, अब ये हमने लिखा what it is, ये हमने डिफाइन किया है what it is, we have defined what it is, ठीक है. सेकेंड, which operates collectively, ये components जो हैं वो collectively ऑपरेट करते हैं, ठीक है. सो दिस वी हैव डिफाइंड व्हाट इज इट, हाउ इट ऑपरेट्स, ये हमने डिफाइन किया है कि ये ऑपरेट कैसे करता है, ठीक है. इट ऑपरेट्स कलेक्टिवली. थर्ड इज व्हाट इज द पर्पस, इसका पर्पस क्या है ये समझना है. थर्ड, सो द पर्पस इज टू accomplish common goals. Common goals can be to identify food, for survival, for reproduction, etc. This is the basic definition of system. ये आपके system का basic definition हो गया. तो environment system can be defined as, अब ये systems environment कैसे define किया जा सकता है, तो write it down. The environment system can be defined as, environment system, it can be defined as the elements surrounding this system, the natural elements, for example trees, forest, mountains, hills. okay, the natural elements surrounding the system is known as environment system. इस system को जो natural elements surround करेंगे, house हो गए, oceans, rivers, animals, etc. those will be environment system, ठीक है. तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है, you have to create a diagram over here, ठीक है. this is called system. ये हो गया आपका system, this entire thing is a system, ठीक है. and the boundary over here, ये जो इसकी बाउंड्री है ना यहाँ पर, this the boundary, the periphery of the system, the surrounding of the system will be known as environment system, ठीक है. the boundary of this system will be known as the environment system. this is the boundary, the periphery. now surrounding, which comprises of living beings, for example we have animals over here, we have trees over here, we have mountains over here, हमारे पास plants हो जाएंगे, ठीक है, river bodies हो जाएंगी, ठीक है. तो these are environment system.
अभी क्लियर हो गया? बेसिक डेफिनेशन इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो. ठीक है, समझ आ गया बेसिक डेफिनेशन? ओके. सो ओवर हियर यू कैन सी व्हाट इज एनवायरनमेंट. अब ये एनवायरनमेंट क्या होता है? दिस एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स. अब आपको समझ आ जाएगा सराउंडिंग क्या है. आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एंड एनवायरनमेंट सिस्टम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नाउ द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. सो it means surroundings. We talked about the surroundings also. This is the surrounding. Okay, surrounding is also known as environs. Okay, so therefore environment of an individual, of an object, even your environment, ठीक है, और सिस्टम, इट इंक्लूड्स अदर एंटिटीज, अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. आप देखोगे आपके इन्वायरमेंट में सभी लिविंग बींग्स नहीं है, नॉन लिविंग्स भी हैं. इन योर इन्वायरमेंट यू विल हैव नॉन लिविंग बींग्स ऑल्सो. येस और नो, जल्दी से बताओ. नॉन लिविंग बींग्स होंगे ना आपके इन्वायरमेंट में? क्या होंगे जल्दी से बताओ. गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग बींग्स. व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग बींग्स इन योर इन्वायरमेंट? यस, वेरी गुड. लैंड, ठीक है, लैंड हो गया, रॉक हो गया, वेरी गुड. ठीक है, स्टोन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग बींग्स. ठीक है, सो इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. बायोटिक इन्वायरमेंट हो जाता है एंड देन वी हैव एबायोटिक इन्वायरमेंट ऑल्सो. Biotic and abiotic. Biotic means living. You have plants, trees, those are living. Then rocks, stones, that is non-living. तो वो हो जाएगा आपका abiotic. ठीक है, फिर आप देखते हो, आपने ये जरूर पढ़ा होगा साइंस में. यू मस्ट हैव हर्ड, स्टडीड दिस इन साइंस, दैट अराउंड यू व्हेन यू कट योर फिंगर नेल्स, यू थ्रो इट अराउंड यू, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एनवायरमेंट बट अ नॉन लिविंग पार्ट. आपके जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, नेल्स होते हैं, ये आपके नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, दे आर एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स विच आर ऑल्सो अराउंड अस. द डेड स्किन सेल्स, दे आर ऑल्सो अराउंड अस, दैट इज अ पार्ट ऑफ एबायोटिक. ओके, एबायोटिक कॉम्पोनेंट. ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे बायोटिक इज लिविंग थिंग्स, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल यू हैव ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ विच यू आर सिटिंग, यू आर स्टैंडिंग. ग्रेविटी की वजह से खड़े हो पाते हो, बैठ पाते हो, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एबायोटिक. soil, energy, sunlight, minerals, these are non-living things, abiotic. अब why they are known as non-living? See, energy has its own mind. energy की भी अपना दिमाग होता है, minerals का भी अपना दिमाग होता है, but they are known as non-living because they cannot multiply. जैसे कि man और animal multiply कर सकता है, bacteria can multiply, they cannot multiply. Okay, gravity cannot multiply like man and animal. Soil cannot multiply like man and animal. That is why it is abiotic. And biotic में example man, trees, bacteria. ठीक है, these are the example of biotic. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब जब कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस इज एबायोटिक और बायोटिक. कोरोना वायरस बायोटिक हो जाएगा कि एबायोटिक हो जाएगा? Yes, it is biotic. काश ये भी एबायोटिक हो पाता, नॉन लिविंग हो पाता, बट ये बायोटिक है बिकॉज इट इज चेंजिंग फॉर्म्स, इट इज मल्टीप्लाइंग, ये फॉर्म चेंज कर रहा है, तो इट इज बायोटिक. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो ओवर हियर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इकोसिस्टम. वी हैव अंडरस्टूड बायोटिक, वी हैव अंडरस्टूड एबायोटिक. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इकोसिस्टम. अब ये इकोसिस्टम क्या होता है ये समझ लेते हैं. सो व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इट इज अ लिविंग कम्युनिटी. ये है क्या? इकोसिस्टम, वी हैव अंडरस्टूड सिस्टम, वी हैव अंडरस्टूड एनवायरनमेंट. इकोसिस्टम इज अ लिविंग कम्युनिटी. राइट इट डाउन. ये एक लिविंग कम्युनिटी है. किसकी लिविंग कम्युनिटी? लिविंग कम्युनिटी ऑफ व्हाट? ऑफ प्लांट्स, ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की, प्लांट्स की लिविंग कम्युनिटी है. ठीक है, सो इट्स अ लिविंग कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एनी एरिया. इन एनी एरिया, कहीं भी जहां पर प्लांट्स एनिमल्स इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज इकोसिस्टम. इन एनी एरिया. ठीक है, टुगेदर with the write it down, the non living components. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो देखो, अभी आप लोग, आपके आसपास पेड़ होंगे, यू मस्ट बी हैविंग ट्रीज इन योर एनवायरमेंट, राइट? So trees, and then you must be having animals, dogs, cats in your environment. So the dogs, cats, animals and you are living together in a community. Okay, आप एक साथ रह रहे हो कम्युनिटी में, बट यू ऑल्सो हैव नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो. यू हैव सॉइल, ग्रेविटी, एनर्जी, सन रेज. ओके, सो ऑल ऑफ यू आर लिविंग टुगेदर, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम. जब बायोटिक, एबायोटिक साथ में रहते हैं, वो इकोसिस्टम हो जाता है. व्हेन बायोटिक एंड एबायोटिक दे लिव टुगेदर, दैट बिकम्स इकोसिस्टम. उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. सो यू कैन डिफाइन इट इन शॉर्ट ऑल्सो. आप शॉर्ट में लिख सकते हो. यू कैन राइट दैट इट इज द स्टडी ऑफ होम ऑफ
लिविंग एंड नॉन लिविंग स्पीशीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग स्पीशीज, दैट इज इकोसिस्टम। जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग स्पीशीज साथ में रह रही हैं वो इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। सो इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो राइट, आप ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर द इकोसिस्टम इट इज ए रीजन, ये क्या है, इट्स अ रीजन विद ए स्पेसिफिक, राइट इट डाउन, with a specific and recognizable landscape, with a specific and recognizable landscape। ठीक है, जैसे कि एक फॉरेस्ट एरिया हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, इट इज एन इकोसिस्टम, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स आर लिविंग टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल ग्रास लैंड, it's an ecosystem. For example wetland, it's an ecosystem. For example coastal area, it's an ecosystem। ठीक है, कोस्टल एरिया भी इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम। ठीक है, पॉइंट क्लियर। सो दैट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब समझते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, इकोसिस्टम किस तरीके से बना हुआ है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या है इसका, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, रूपांतरण है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर मेंस। ये आपका टॉपिक मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इकोसिस्टम बनता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, किन चीज़ों से इकोसिस्टम आपका निर्मित होता है, बनता है, वो हो गया स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हो जाएगा वी हैव द इनऑर्गेनिक, वी हैव द इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट। ठीक है, अब वो एस्पेक्ट जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, इट्स इनऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हो वाटर, वाटर में H2O होता है। ठीक है, फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड देखते हो CO2। ठीक है, फिर आपके पास कार्बन होता है। ठीक है, वी हैव नाइट्रोजन ऑल्सो, N भी हो गया हमारे पास। ठीक है, ये जो जितनी गैसेज है ना, ये इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट में गिनी जाती हैं। तो ऑर्गेनिक में क्या गिना जाता है, ऑर्गेनिक में गिना जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो आपकी बॉडी में भी पाया जाता है और बाहर भी पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एस्पेक्ट इज दैट एस्पेक्ट विच इज फाउंड इन योर बॉडी ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑर्गेनिक एस्पेक्ट में आप देखोगे विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, वो एस्पेक्ट, वो चीज़ें जो आपकी बॉडी के ग्रोथ में यूज होती हैं। सो ऑर्गेनिक एस्पेक्ट इज ओवर हियर प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लिपिड्स, लिपिड्स इज ऑल्सो फाउंड इन द फैट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है क्लाइमेटिक रीजन। देखो एक इकोसिस्टम में ऑब्वियसली क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एन इकोसिस्टम क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सो क्लाइमेटिक रिजीम्स, बिकॉज अगर क्लाइमेट नहीं होगा प्रॉपर तो आप ग्रो कैसे करोगे, इफ देर इज नो प्रॉपर क्लाइमेट हाउ विल यू ग्रो। सो क्लाइमेटिक रिजीम्स दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो क्लाइमेटिक रिजीम्स में यहाँ पर क्या आएगा, टेम्परेचर, वी हैव स्टडीड टेम्परेचर इन द ज्योग्राफी क्लासेज ऑल्सो, हमने ज्योग्राफी क्लासेज में पढ़ा था, भूगोल की क्लास में टेम्परेचर। ठीक है, तापमान। देन वी हैव मॉइस्चर। ठीक है, देन वी हैव लाइट, वी स्टडीड टोपोग्राफी ऑल्सो, हमने अपनी भूगोल की क्लास में टोपोग्राफी के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, सो टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, टोपोग्राफी, दीज आर द डिफरेंट क्लाइमेटिक रिजीम्स विच मेक अप एन इकोसिस्टम, जिसकी वजह से इकोसिस्टम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई we see the desert, when temperature is very low or when the temperature is when the moisture is very high, जब moisture बहुत high होता है we see the wetlands। ठीक है, कोस्टल एरियाज, तो हमारे पास कोस्टल एरिया आ जाता है जहाँ मॉइस्चर बहुत है, हमारे पास वेटलैंड आ जाते हैं, जब मॉइस्चर बहुत कम है, नमी बहुत कम है, तो वो डेजर्ट रीजन आ जाता है। तो इकोसिस्टम प्रभावित होता है ना क्लाइमेटिक रिजीम से, इकोसिस्टम गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट क्लाइमेटिक रिजीम्स। ओके, देन वी हैव प्रोड्यूसर्स इन आवर इकोसिस्टम। भैया प्रोड्यूसर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स तो हैं प्लांट्स, प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर दी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका कंज्यूमर्स। नाउ कंज्यूमर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंज्यूमर्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, वी हैव मैक्रो कंज्यूमर्स, वी हैव माइक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है, तो मैक्रो एंड माइक्रो, तो मैक्रो कंज्यूमर्स में क्या आते हैं, लार्ज एनिमल्स,
हम भी मैक्रो कंज्यूमर्स का ही हिस्सा है. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मैक्रो कंज्यूमर्स ओनली. वी हैव लार्ज एनिमल्स ओवर हियर. टॉकिंग अबाउट माइक्रो कंज्यूमर्स, यहाँ पर आपके स्मॉल एनिमल्स आते हैं, यानी कि स्मॉल प्राणी. तो यहाँ पर फंगाई आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा. दीज आर स्मॉल कंज्यूमर्स. ठीक है, दीज आर स्मॉल एब्जॉर्बर्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज, ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, राइट इट डाउन. दे आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स. ठीक है, they can ask you the examples of saprotrophs. These are small consumers. Fungi, virus, bacteria, algae, all of them come in the micro consumers. ठीक है, मैक्रो कंज्यूमर्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस. यू आर मैक्रो कंज्यूमर ऑल्सो. दे आर नोन एज, इनको क्या बोला जाता है, फैगोट्रॉफ्स. राइट इट डाउन, इनको हम फैगोट्रॉफ्स बोलते हैं. These two terms are very important for prelims. Make sure you are revising them again and again. ये याद रखिएगा, micro consumers known as saprotrophs. They can ask you the examples. Macro consumers phagotrophs. यहाँ तक पॉइंट क्लियर रहेगा. अब देखो, ये हमने पढ़ लिया बनावटी स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का, बनावटी कंपोनेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम. व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच मेक अप एन इकोसिस्टम, जिससे इकोसिस्टम बनता है. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. Now we will understand the functional aspects. The functional aspects of ecosystem. Ecosystem के function का aspect, यानी कि ये function कैसे करता है. The functional aspect of ecosystem. What an ecosystem actually does. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ecosystem actually में करता क्या है भैया, perform क्या करता है. What an ecosystem actually does. ठीक है, this is again very important. तो करता क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, इट मेंटेन्स एनर्जी साइकिल्स. हाउ इट मेंटेन्स एनर्जी साइकिल्स, वी नो दैट व्हेन वी कंज्यूम, जब हम कंज्यूम करते हैं तो द एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट वी आर कंज्यूमिंग गेट ट्रांसफर्ड इनटू आवर बॉडी. जिस बॉडी को हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट फॉल्स ऑन द प्लांट, प्लांट एब्जॉर्ब्स कंज्यूम्स दैट सनलाइट. ठीक है, अगर प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है कोई ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर में वो पार्ट ऑफ एनर्जी इज गोइंग. दैट इज वाई इट इज सेड फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज फ्रॉम फूड द एनर्जी इज कमिंग इन टू आवर बॉडीज. इसलिए तो कहा जाता है कि फूड एक जो है वो एनर्जी का स्रोत है. क्यों? क्योंकि उसी से तो एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, एनर्जी साइकिल्स. देन सेकेंड इज फूड चेन. सेकेंड फंक्शन इज मेंटेनिंग द फूड चेन. थर्ड फंक्शन इज डाइवर्सिटी. थर्ड फंक्शन हो जाएगा डाइवर्सिटी. हाउ डाइवर्सिटी? बिकॉज द इकोसिस्टम इट मेंटेन्स द इंटरलिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ये ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरलिंकेज को मेंटेन करता है. इट डाइवर्सिफाइज द पॉपुलेशन. ठीक है, एंड देन फोर्थ हो जाएगा न्यूट्रिएंट साइकिल्स. ऑब्वियसली इट कम्स फ्रॉम द फूड चेन ओनली. न्यूट्रिएंट ऑल्सो, देखो न्यूट्रिएंट साइकिल्स को हम बायोकेमिकल साइकिल्स भी बोलते हैं. Write it down, it is also known as biogeochemical cycle. ठीक है, this is important for prelims. For example, इसका example क्या हो सकता है? Example can be water cycle. ठीक है, आपका water cycle example हो गया. In the geography NCERT classes we studied the water cycle also. ठीक है, we studied the rock cycle also. हमने rock cycle भी पढ़ा था. Then we have carbon cycle. हमारे पास carbon cycle आता है, nitrogen cycle आता है. ठीक है, देन वी हैव ऑक्सीजन साइकिल. ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एवोल्यूशन. ठीक है, इकोसिस्टम का फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है एवोल्यूशन, दैट वी हैव सीन सिंस एजेस. हमने तो एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम से देखा है एवोल्यूशन. सो दैट एवोल्यूशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बिना एवोल्यूशन नहीं हो सकता. एवोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो दीज आर दी फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम. दीज आर दी फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. सो देयरफॉर यू कैन से दैट इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज अ होल. क्योंकि देखो, एक कीड़े के लिए, एक छोटी सी एंट के लिए छोटा इकोसिस्टम हो सकता है. ठीक है, इकोसिस्टम फॉर एन एंट कैन बी वेरी स्मॉल. सो इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज अ होल फॉर द एंट्स एंड इट कैन बी लार्ज एज अ थिन स्किन ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर आप एनिमल्स के लिए देखो तो बहुत बड़ा हो सकता है इकोसिस्टम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टाइम पीरियड ऑफ डायनासोर्स. डायनासोर्स का टाइम पीरियड आप देखोगे, इकोसिस्टम वाज वेरी लार्ज फॉर देम. फॉर एंट्स इकोसिस्टम कैन बी वेरी स्मॉल. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो यहाँ तक अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से बताएं. ठीक है, अब इकोसिस्टम भी जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है.
environment had two components, biotic, abiotic. Ecosystem is also divided into two parts. First is terrestrial ecosystem, जो आपका थल पे इकोसिस्टम होता है, लैंड बेस्ड होता है, ठीक है. टेरेस्ट्रियल, राइट इट डाउन, इकोसिस्टम, दिस इज द लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, इसको हम बोलते हैं लैंड बेस्ड, ठीक है, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम. एंड सेकंड कैन बी एक्वेटिक इकोसिस्टम, सेकंड विल बी एक्वेटिक इकोसिस्टम विच इज वाटर बेस्ड. ये वाटर बेस्ड होता है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा ओशंस, एग्जांपल कैन बी रिवर, पॉन्ड, लेक, दीज कैन बी द एग्जांपल ऑफ वैलीज, ये एग्जांपल हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम का. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एग्जांपल कैन बी, एग्जांपल हो जाएगा ग्रासलैंड्स, ठीक है, दे कैन बी द एग्जांपल. डेजर्ट हो जाएगा एग्जांपल, ठीक है, फॉरेस्ट हो जाएंगे यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है, दैट कैन बी द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल. ठीक है, यहाँ तक बात खत्म, समझ आ गई है तो जल्दी से बताओ. सो ओवर हियर यू विल सी दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इकोसिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. ये मैंने PYQ से लिया है. These notes I have taken, this is from PYQs, previous year questions. So what is ecosystem we have studied. Now who termed this term, किसने coin up किया ये term, पहली बार किसने use किया. It was A.G. Tansley that came out with this term called ecosystem in the year 1935. ये जो शब्द है इकोसिस्टम पहली बार किसने यूज किया था, A.G. Tansley ने 1935 में. So in certain terms, in simple meaning, it is community of living and non-living things that work together. ये simple definition है इकोसिस्टम की, formulated by A.G. Tansley. ठीक है, वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चरल फॉर्मेट ऑल्सो एंड फंक्शनल यूनिट ऑल्सो ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शनल भी पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल भी पढ़ लिया, ठीक है. और फिर हमने पढ़ लिया टू क्लासिफिकेशंस ऑल्सो ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक. अब इकोसिस्टम मैन मेड भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू ऑल मस्ट हैव सीन एक्वेरियम्स. आप लोगों ने फिश एक्वेरियम्स तो देखे होंगे, मार्केट में मिलते हैं, दे आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, इट्स अ मैन मेड इकोसिस्टम. उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स आर देयर, राइट, देन द फिशेज आर ऑल्सो देयर. ठीक है, सो दैट इज अ स्मॉल मैन मेड इकोसिस्टम. अब आप देखोगे एक फार्मर का क्रॉप फील्ड, अ क्रॉप फील्ड ऑफ अ फार्मर, दैट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम. मैन मेड फॉरेस्ट भी होते हैं, मैन मेड पॉन्ड्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रही है. तो ये आपका मैन मेड इकोसिस्टम में आ जाता है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. किसी को कोई डाउट है? अभी तक तो एनवायरनमेंट बहुत इजी है. सी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट दैट यू कैन फाइंड इन यूपीएससी. द थिंग इज यू जस्ट हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड इट. उसको समझने के लिए एफर्ट डालने हैं बस. वैसे तो बहुत ईजी है ये. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो यहाँ आप देखोगे, हियर यू विल सी दैट दिस इज एन इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एबायोटिक, बायोटिक. एबायोटिक में वी हैव इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? आई गिव यू द एग्जांपल ऑल्सो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वी हैव, बताओ जल्दी से क्या है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. वी हैव ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O. ठीक है, वेरी गुड. देन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या दिए थे? व्हाट वर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स? क्या लिखा था जल्दी से बताओ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स. ओके, वेरी गुड. देन वी हैव क्लाइमेट कंडीशन. ठीक है, फिर हमने क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़े थे. ठीक है, दीज आर अ पार्ट ऑफ एबायोटिक. बायोटिक में वी हैव प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. देन वी हैव फोटोट्रॉफ्स, वी हैव कीमोट्रॉफ्स. ठीक है, अब आप कंज्यूमर्स में देखोगे, देखो ये जो है ना फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स, दीज आर कंज्यूमर्स. ठीक है, जिसको हम सैगोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. वी हैव सैगोट्रॉफ्स ऑल्सो ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पर मैक्रो कंज्यूमर्स आ जाते हैं. दीज आर नोन एज फैगोट्रॉफ्स. मैक्रो कंज्यूमर्स फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स. देन वी हैव माइक्रो कंज्यूमर्स नोन एज सैगोट्रॉफ्स. फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी. ठीक है, तो ये आपके कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर्स. ठीक है, तो ये आपको टेबल समझ आ गया सभी को? वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस. ठीक है, ये टेबल समझ आ गया ना? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑटोट्रॉफ्स. अब ऑटोट्रॉफ्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल्स कैन बी प्लांट्स. ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल प्लांट्स हो सकते हैं. एंड ऑटोट्रॉफ्स आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स. ये प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है. ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं. ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं.
ठीक है, एंड दे डू नॉट ईट अदर्स, दूसरों को नहीं खाते, ये याद रखना है, ठीक है, दे डू नॉट ईट अदर्स, एंड दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये भी 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स का मतलब प्रकार हो जाएगा इधर। तो फर्स्ट इज फोटोट्रॉफ्स, दे डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सन, आप देख रहे हो सन से डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है, दीज आर फोटोट्रॉफ्स, ठीक है। कीमोट्रॉफ्स में बैक्टीरियाज आ जाते हैं, सर्टन इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज विच विल बी अ पार्ट ऑफ कीमोट्रॉफ्स, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कीमोसिंथेसिस, तो वो कीमोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी के थ्रू अपने खाना बनाते हैं, दे आर दी साइनोबैक्टीरियाज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और साइनोबैक्टीरिया कीमो सिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। सो देयर आर 2 प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस, chemosynthesis. Photosynthesis is the process which uses the sunlight to prepare food. Chemosynthesis is a process which derives energy from chemicals, that is chemosynthesis. So I have given you the examples also. This is very important for prelims, इसको please याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं heterotrophs. Now we have heterotrophs. So heterotrophs are the consumers. Consumers जो हैं वो heterotrophs होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काओ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, फॉर एग्जाम्पल अर्थ वॉर्म, फॉर एग्जाम्पल फंगाई, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स, ये सारे आपके हेट्रोट्रॉफ्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ्स को जब अगर आप देखोगे, दे आर नॉट केपेबल टू मेक देयर ओन फूड। कैन काउ प्रिपेयर हर ओन फूड? नो। क्या एनिमल्स अपना खुद का खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। सो दे डिराइव फूड फ्रॉम आउटसाइड, वो बाहर से खाना डिराइव करते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो वर्ड मीन्स अदर्स, ठीक है, बाकी के लोग जो कि खाना बाहर से ऑब्टेन करते हैं, दोज आर हेट्रोट्रॉफ्स। आजकल तो ह्यूमन बींग्स भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, स्विगी से खाना मंगाते हैं, जोमेटो से खाना मंगाते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। दिस इज जस्ट इन जेस्ट, ओके। चलो, सो इन हेट्रोट्रॉफ्स दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैक्रो कंज्यूमर एंड दी माइक्रो कंज्यूमर एंड मैक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रो का मतलब होता है रॉटन, तो वो लोग जो कि डिकेड मैटर में से खाना ढूंढते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच फाइंड फूड फ्रॉम द डिकेड मैटर, rotten matter, they are decomposers, they are known as saprotrophs. For example, we have earthworms, we have bacteria, we have fungi, they find their food, they decompose food, ठीक है, and then they find their energy. So these are the organisms that feed on dead organic matter, ठीक है। ये लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, विच इज जनरेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो मैटर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में से जनरेट होता है वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएंगे सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। एंड सेप्रोट्रॉफ्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वी हैव डीकम्पोजर्स, वी हैव डेट्रियस फीडर्स, ओके। So over here micro is divided into 2 parts, decomposers and detritus feeders. अब decomposers are microorganisms, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, वो अदर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं अपने खाने के लिए, दे फीड ऑन द अदर डेड मैटर। फिर आपके पास आता है डेट्रिटस फीडर। डेट्रिटस फीडर्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, दीज आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर स्मॉल एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल माइट्स, कीट जिसको आप बोलते हो, पतंगा जिसको आप बोलते हो, अर्थवॉर्म्स, ठीक है। So these are tapeworm can be clubbed together in small animals. They feed on partially decomposed organic material, ठीक है। ये already decomposed पे feed नहीं करते, they do not feed on already decomposed matter. They feed on partially decomposed matter, वो matter जो कि अभी आधा decompose हुआ है ताकि वापस उसे और decompose किया जा सके। That is why earthworm is known as farmer's friend. आपने 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड इन 6th ज्योग्राफी एनसीईआरटी। अर्थवॉर्म इज पुट इनटू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन द डेड ऑर्गेनिज्म, जो रिमेन्स है ना डेड ऑर्गेनिज्म के, उनको ब्रेक डाउन करती है अर्थवॉर्म, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये 2 हो गए माइक्रो में। अब देखो ये कॉमन सेंस है, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल। तो आपके जो ईगल और वल्चर है क्या वो माइक्रो में आएंगे? जल्दी से बताओ, विल ईगल एंड वल्चर फॉल इन द माइक्रो कैटेगरी? ऑब्वियसली नो, ठीक है। यहाँ पर साइज को भी तो देखेंगे हम, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
सो वाई विल दे फॉल इन माइक्रो, तो मैक्रो में आएंगे आपके वल्चर्स और ईगल्स, ठीक है। तो मैक्रो कंज्यूमर्स आर नोन एज फैगोट्रॉफ्स दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, पहले भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। दे आर दी कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कंज्यूमर्स जो डेड मैटर पे फीड नहीं करते, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेड हो, ठीक है। इट कैन हैपन दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी कैन बी डेड बॉडी, ठीक है, बट दे फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फैगोट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट बाय ईटिंग। फैगो का मतलब होता है ईटिंग, सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, ठीक है। फैगो मीन्स ईटिंग, सो व्हेन यू गेन योर नरिशमेंट थ्रू ईटिंग, दैट इज फैगोट्रॉफ। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैगोट्रॉफ। अब फैगोट्रॉफ के भी अलग अलग काइंड्स होते हैं। वी हैव प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक हर्बीवोर्स, ठीक है, यानी कि जो कि डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि गोट हो गई, बकरी सीधा प्लांट्स के पत्ते खाती है ना, काउ, ग्रास हॉपर, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली, ठीक है। देन वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर, दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। मान लो लायन, लायन ईट्स द काउ और द गोट, ठीक है, फॉक्स, स्नेक्स। Then we have tertiary consumer, that is the top carnivore, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉक, ठीक है, यहाँ पर आपका हॉक हो गया। फिर ओमनीवोर्स हो जाते हैं, दे आर द पीपल, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यानी कि जो कि वेज भी हैं और नॉन वेज भी हैं, बट वो पर्टिकुलरली वेजिटेरियंस की कैटेगरी में काउंट नहीं होते, ठीक है। जैसे कि आपकी क्रो हो गया, ठीक है, क्रो अब वेजिटेरियन नहीं है, येस इट कैन फीड ऑन प्लांट्स बट इट इज नॉट अ वेजिटेरियन। रैट्स हो गए, ठीक है, रैट्स जो है वो चीज़ खा लेंगे बट वो वेजिटेरियंस नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका मैक्रो कंज्यूमर्स ऑफ फैगोट्रॉफ, ठीक है। दिस इज दी मैक्रो कंज्यूमर और यू कैन कॉल इट अ फैगोट्रॉफ एज वेल। तो यहाँ पर ये सभी को डायग्राम दिख रहा है, एवरीबडी कैन सी दिस डायग्राम। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, डीकम्पोजर्स टुगेदर दे आर पार्ट ऑफ हेट्रोट्रॉफ। ये तीनों किसका पार्ट है? हेट्रोट्रॉफ का पार्ट है। एंड दिस येलो साइन इज द साइन ऑफ एनर्जी मूवमेंट। ये आप एनर्जी साइकिल भी है, दिस इज द एनर्जी साइकिल ऑल्सो। दीज येलो साइंस, दीज आर द एनर्जी मूवमेंट्स। सो फ्रॉम द सन एनर्जी इज गोइंग टू द प्रोड्यूसर्स। सन से एनर्जी कहाँ जा रही है? प्रोड्यूसर्स में जा रही है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर द मिनरल न्यूट्रिएंट पूल। देन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एनर्जी इज गोइंग टू हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स से एनर्जी आपकी डीकम्पोजर्स में जा रही है, कार्निवोर्स में जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी साइकिल। राइट इट डाउन दैट द एनर्जी साइकिल is based on the flow of energy through the ecosystem. Now before moving forward, आगे बढ़ने से पहले अभी हम पढ़ेंगे components के बारे में. We will study different food chain and food web. So before we move forward, this is the small announcement for all of you. आपके लिए एक छोटी सी announcement है, ठीक है. So Unacademy has launched its Iconic subscription, as you all know. In the Iconic subscription, you will get a personal coach. You will be getting your mains question and answer practice. Evaluation will be there. Study planner आपको मिलेगा. Expert guideline यहाँ पर आपको मिलेगी. हिंदी इंग्लिश दोनों में है Iconic subscription. So if you are a हिंदी मीडियम स्टूडेंट, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आपके लिए बैचेज हैं अलग से हिंदी में, और जो पर्सनल कोच होगा वो आपको हिंदी में ही गाइड करेगा यहाँ पर, ठीक है. इफ़ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, योर पर्सनल कोच विल गाइड यू इन इंग्लिश, क्लासेस विल बी इन इंग्लिश फॉर यू, ओके. देन यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस. आपके डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेक्शंस भी आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा जितने टाइम पीरियड के लिए सब्सक्राइब किया है. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे. वी विल ट्राई टू कंप्लीट, नॉट ट्राई, वी गारंटी यू दैट वी विल कंप्लीट द एंटायर कोर्स बिफोर प्रीलिम्स. यहाँ पर गारंटी है कि आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है. प्रीलिम्स से पहले रिवीजन भी होगी, बिकॉज क्रैश कोर्सेज भी होते हैं. पर्सनल कोच आपको स्टडी प्लानर प्रोवाइड करेगा जिससे आप रिवाइज कर सकते हो. एंड यू कैन यूज दिस कोड शर्मा20 टू गेट 10% डिस्काउंट. अब आपको पता है कि 25 जनवरी से प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं. फ्रॉम 25 जैन द प्राइसेज आर इंक्रीजिंग इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, यू कैन सब्सक्राइब टुडे. आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन, okay, and you can use this code sharma20 to get 10% off on your subscription, okay, clear. तो प्राइस राइज हो रहे हैं. पर्सनल कोच आपको यहाँ मिलेगा, बेनिफिट है इसका, तो चाहें तो जल्दी से आज सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एनर्जी साइकिल. सबसे पहले एनर्जी साइकिल को फिर से समझ लेते हैं.
देखो यहाँ पर आप देखोगे एनर्जी साइकिल जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है. इकोसिस्टम में, इन एन इकोसिस्टम हाउ द एनर्जी फ्लोज, that is dependent on the energy cycle. And we know that the main source of energy is, main source कौन है एनर्जी का? सन है. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम. सन ही नहीं होगा तो यहाँ एनर्जी फ्लो ही नहीं करेगी. तो हाईएस्ट सोर्स कॉमन सेंस यूज करके क्या होगा? सन. इफ देर इज नो सन देर विल बी नो ऑटोट्रॉप्स. इफ नो ऑटोट्रॉप्स वेयर विल द हर्बीवोर्स कम फ्रॉम. ठीक है, तो आपकी जो सन की एनर्जी है वो आपकी सारे एनर्जी साइकिल को रेगुलेट करती है. ठीक है, सो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनर्जी साइकिल, यहाँ पर आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू क्रैम समथिंग अबाउट इट. इट्स कॉमन सेंस. इट इज सन. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर सभी को. तो सन जो है वो बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती है थ्रू दी प्रोड्यूसर्स. ओके, एंड एनर्जी इन द इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फूड पिरामिड. हम फूड पिरामिड के फॉर्म में भी एनर्जी को डिपिक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. अब बात आती है फूड पिरामिड के अंदर. इन दिस पिरामिड राइट इट डाउन, द लार्ज बेस, हम बेस की बात कर रहे हैं, लार्ज बेस ऑफ प्लांट इज नोन एज, जल्दी से बताओ, अभी हमने डिस्कस किया है. द लार्ज बेस ऑफ प्लांट इन अ फूड पिरामिड इज नोन एज, प्लांट्स को हम और क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? प्रोड्यूसर्स. वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स. ठीक है, फूड पिरामिड के अंदर हम उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं. ठीक है, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. ठीक है, ये याद रखना है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल एंड इकोलॉजिकल पिरामिड. दीज आर द टर्म्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. Now we know that the most obvious aspect of nature is that energy should pass from the different levels. हमें पता है ये जो हम पिरामिड देख रहे हैं, ये ट्राइंगल जो देख रहे हैं, सबसे ऑब्वियस चीज ये होनी चाहिए कि एनर्जी पास होनी चाहिए. एनर्जी शुड पास, ओनली देन यू कैन ग्रो. तभी तो आप ग्रो कर पाओगे. जब एनर्जी पास नहीं होगी तो कैसे ग्रो करोगे, कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? ठीक है, सो एनर्जी शुड पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट इज द ऑब्वियस थिंग अबाउट द फूड चेन और फूड वेब. ओके, सो हर्बीवोर एनिमल जो है प्लांट्स पे फीड करते हैं, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू एनिमल. व्हेन हर्बीवोर्स दे फीड ऑन प्लांट्स, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स. ठीक है, सो इन एन इकोसिस्टम सम ऑफ द एनिमल्स दे फीड ऑन अदर एनिमल्स. इकोसिस्टम में कुछ एनिमल्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं. ठीक है, वी नो दैट, राइट? सम ऑफ द एनिमल्स दे फीड ऑन other animals, other living organism, while some feed on dead organic matter, for example the earthworm, for example the tapeworm. ये जो earthworm, tapeworm है, ये dead organic matter पे depend करते हैं, feed करते हैं. ठीक है, अब इससे होता क्या है, at each linkage, इस linkage में ये जो chain है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. at each linkage in the chain, major part of energy from one food is lost to another person. यहाँ से एनर्जी लूज हो रही है दूसरे एलिमेंट पे. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉक्स है और रैबिट है. फॉक्स रैबिट को खा रहा है, रैबिट प्लांट्स खा रहा है. ठीक है, प्लांट से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है रैबिट में. सम एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स इज गोइंग टू रैबिट, देन फॉक्स इज ईटिंग द रैबिट, सम एनर्जी फ्रॉम रैबिट इज गेटिंग ट्रांसफर टू फॉक्स. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सो दिस इज द लिंक. अब इसमें होता क्या है, दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी का एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में, इसको फूड चेन बोलते हैं. ठीक है, ये फूड चेन हो जाता है. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन. ये स्टार्ट होता है प्लांट से. फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट्स. सो व्हेन द ट्रांसफर इज ऑफ एनर्जी इज गोइंग ऑन from plants to another organisms, it is food chain. तो इसकी definition लिख लो, this transfer, write it down, this transfer of energy from the source in plants, from the source in plants through a series of organisms, by eating, ठीक है, एंड बीइंग ईटन, ये नहीं है कि हम सिर्फ खा रहे हैं, हमें भी खाया जा रहा है. एंड बीइंग ईटन कॉन्स्टिट्यूट्स फूड चेन. ठीक है, ये हो जाता है आपका फूड चेन. एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद प्लांट्स. ये स्टार्ट किससे होता है, प्लांट्स से स्टार्ट होता है. सोर्स ऑफ एनर्जी से स्टार्ट होता है, दैट इज प्लांट.
ठीक है, दैट इज फूड चेन। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका फूड चेन हो गया, ठीक है, दिस वन इज फूड चेन, ठीक है। इट ऑल स्टार्ट्स विद द प्लांट, सन से एनर्जी प्लांट में जाती है, प्लांट को गोट खाती है, गोट को आप बोल सकते हो लायन खाता है या टाइगर खाता है, ये आपका हो गया फूड चेन। इट स्टार्ट्स विद प्लांट, देन प्लांट इज ईटन बाय गोट, गोट इज ईटन बाय लायन, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। एंड इट कैन बी नॉट इन सिंगल डायरेक्शन, ये सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता, इट कैन बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी प्लांट, मान लो ये प्लांट है, लेट्स से दीज आर प्लांट्स, ठीक है, दीज आर प्रोड्यूसर्स, मान लीजिए ये है प्रोड्यूसर्स, दैट इज द प्लांट, ठीक है। देन प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय ग्रास हॉपर्स ऑल्सो, इनको तो ग्रास हॉपर्स भी खाएंगे, इट इज ईटन बाय रैट्स ऑल्सो, देन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रैबिट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन है, ये है हर्बीवोर्स, दीज आर हर्बीवोर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये बेचारा जो चूहा है इसको कौन खाएगा, दिस चूहा विल बी ईटन अप बाय स्नेक ऑल्सो, एंड कौन खाएगा इनको, स्नेक भी खा सकता है, और जो बड़े बड़े मोल्स होते हैं, बिग मोल्स, फॉरेस्ट मोल्स, डेजर्ट मोल्स, दे कैन ऑल्सो ईट देम, ठीक है, ईगल्स भी खा सकती है इनको, ईगल्स कैन ऑल्सो ईट देम, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। नाउ ऑल ऑफ देम, ये जो स्नेक है, दी स्नेक, दीज मोल्स विल बी ईटन अप बाय आउल्स, आउल आपका स्नेक भी खा लेगा और मोल्स को भी खा लेगा, ठीक है। तो आप देखोगे अलग अलग डायरेक्शन में, दीज आर टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो जमीन पे रहते हैं, पानी में नहीं रहते, ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो हमने ये समझ लिया कि फूड चेन क्या है, फूड चेन इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम द सोर्स, सोर्स मीन्स द सन, सन में से जो एनर्जी आई प्लांट्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो रही है, द एनर्जी विच द सन emitted towards the plants, it is being transferred by a different organism. So what is food web? अब ये food web क्या होता है, so write it down, यहाँ पर आप लिख सकते हो food web की definition, that these food chains, ठीक है, are not isolated sequences, these are not isolated sequences, they are interconnected, ठीक है, ये लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं, फूड चेन में जो सीक्वेंसेस होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं ना एक दूसरे के साथ, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर इंटरकनेक्टेड, ये सब आपके इंटरकनेक्टेड है, रैट, ग्रास हॉपर, रैबिट, स्नेक, आउल, ईगल, प्लांट्स, ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। सो दीज फूड चेन्स आर नॉट आइसोलेटेड, ये इंडिविजुअल नहीं है, अकेले नहीं है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, एंड its interconnectedness or its interconnected pattern is known as food web. इसी इंटरकनेक्टेडनेस को फूड वेब बोलते हैं। देखो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ये तो फूड चेन हो गई, दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स थ्रू प्लांट्स टू द अदर ऑर्गेनिजम्स इज फूड चेन। फूड वेब इज दिस इंटरकनेक्टेडनेस, ये बेचारे एक दूसरे के साथ सब इंटरकनेक्टेड हैं, इस इंटरकनेक्टेडनेस को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। दिस इज नोन एज फूड वेब, ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दैट इज फूड वेब। अभी डिफरेंस क्लियर हो गया तो जल्दी से बताओ, इफ द डिफरेंस इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। फूड चेन इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी that we have seen over here, this is the transfer of energy, and food web is interconnectedness, ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया सभी बच्चों को, ठीक है। अब देखो हर स्टेप जो होता है ना फूड चेन में, यहां पर आप देखोगे ईच एंड एवरी स्टेप इन दिस फूड चेन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। ये हर स्टेप को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ये जो आपके स्टेप्स है ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ऑल दी स्टेप्स आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल। ईच स्टेप ऑफ द फूड वेब इज ट्रॉपिक लेवल, ये आप लिख लो यहाँ पर, ईच स्टेप in the food web is known as trophic level. This is important for prelims, ये आपका prelims के लिए important है। Hence we know that green plants they occupy the first level, जो आपके green plants आते हैं वो आपके food web के first level पर आते हैं, they come at the first level, ठीक है। Then we have herbivores, we have herbivores at the second level, second level पे आपके आ जाते हैं herbivores,
जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, दे फीड ऑन द प्लांट्स, ठीक है. देन एट द थर्ड लेवल वी हैव दी सेकेंडरी कार्निवोर्स. यहाँ पर हमारे पास कार्निवोर्स आ जाते हैं. आप सेकेंडरी कार्निवोर्स बोल लो या कार्निवोर्स बोल लो, ठीक है. कार्निवोर्स विल बी एट द थर्ड लेवल, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है. दीज आर दी डिफरेंट लेवल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. अब हम ना इकोलॉजिकल पिरामिड देख लेते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इकोलॉजिकल पिरामिड. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस डायग्राम. आप लोग भी इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आई एम ड्रॉइंग, ठीक है. अब आप यहाँ पर देखोगे, ओवर हियर यू विल सी, आई विल जस्ट ड्रॉ डिफरेंट लेवल्स इन दिस पिरामिड. मैं इस पिरामिड में ना अलग अलग लेवल्स बना देती हूँ ताकि आप समझ सकें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओवर हियर. वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ओके. तो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. यहाँ पर आप देखोगे एट दिस लेवल, ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर्स. ये जो एनर्जी है यहाँ पर, दिस इज द energy of producers, this is the producer level, okay. Here we have 100% energy. यहाँ पर sun से direct energy आ रही है, from sun direct energy is coming, that is the 100% energy, ठीक है. Then this is the next level. next level है यहाँ पर energy of primary consumer, this is the next level, ठीक है. यहाँ पर 10% energy आ गई, ठीक है. we have taken 10% of energy. Then this level is known as energy of, write it down, secondary consumer. यहाँ पर हो जाता है एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर की, ठीक है. सो ओवर हियर वी हैव, यहाँ पर कितने परसेंट है, 1% एनर्जी, ठीक है. देन एट दिस लेवल वी हैव एनर्जी ऑफ, राइट इट डाउन, एनर्जी ऑफ टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है. ये हो गया आपका टर्शरी कंज्यूमर की एनर्जी. एंड हियर वी हैव 0.1%, ठीक है. यहां पर हो जाएगा आपका 0.1%. सो दिस इज द इकोलॉजिकल पिरामिड. इसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी द इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, ये होता क्या है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन. द ट्रॉफिक लेवल्स दैट वी हैव स्टडीड, द ट्रॉफिक लेवल्स दे टुगेदर फॉर्म द इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है. फॉर्म्स द इकोलॉजिकल पिरामिड, EP, ठीक है. सो एट ईच ट्रांसफर अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. ये जो एनर्जी लॉस्ट होती है ना, ये किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में लॉस्ट होती है, ठीक है. इकोलॉजिकल पिरामिड समझ आ गया सभी को. सो दिस इज योर टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी इकोलॉजिकल सक्सेशन, वी विल स्टडी इकोटोन, and we are going to study some of the current affairs related to environment and ecological system. तो आपको क्लास का PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. यू विल गेटिंग द क्लास PDF एंड क्लास शेड्यूल एंड टाइमिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है. तो आप सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज, ठीक है. एंड आप जो जो आज सेशंस होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, इन दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है. So on this note we are wrapping up the session. I hope you enjoyed the class today. उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई हो. And also do not forget to subscribe to Unacademy Plus Iconic subscription, because here the prices are increasing from 25th of Jan. You can use this code Sharma20, ठीक है. And also if you are using the Unacademy learning app, you can watch all the classes free of cost if you use the code Arpita10. अगर आप अर्पिता 10 कोड यूज करते हैं तो आप सारी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हो, टेस्ट अनलॉक कर सकते हो, ठीक है. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास.